Yes, students, welcome all of you in concepts building classes. So, students, very interesting topic here. I want to bring in front of you surface area volume. This is the 10th class NCERT exercise 13.1. This topic, this chapter name is surface area and volume. In this chapter, all 5 exercise discussed in front of you, but before this discussion going forward, I tell you some things here, and all formula whatever you did hold the surface area volume, I discuss one short video. In one short video I discuss all the formula whatever used. Okay, so let us start, friends. First, so friends, you know some basic formula whatever used. By the basic formula you can learn many different shape, size and many conic section formula. So first, friends, here start in front of you a square. Okay, friends, this is a square. First I want to a square. So you can see simple, this is simple figure, friends. This is a square. So a square, this is a side, this is a side, also a side, this is also, because a square, in a square all the sides are equal and all the angles, this angle are 90 degree. Okay, friends. So its perimeter, if you want to find the perimeter of a square, so what is the definition, friends? Perimeter is the sum of length of outer boundary. Okay, sum of length of outer boundary, whatever the outer boundary of any shape, you can add them, we get the perimeter of any shape. So now discuss here, this is a square, so we add all the length of outer boundary. This is if A, B, C, D. So you can write AB plus BC plus CD plus DA. Okay, all the perimeter AB plus BC plus CD plus DA. Okay, friends. Now all the sides are equal, so you can write A plus A plus A plus A. Here we assume side of the square is A. Okay, so we can write simply here is 4A. तो perimeter per square is 4A. So friends, मैं थोड़ा ये सब इसलिए ले रहा हूँ कि इसके हेल्प से हम दूसरे शेप की डिफरेंट सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को मैं डिस्कस कर पाऊँगा. तो मैं थोड़ा सा आपको पहले मैं यहाँ पे एक व्यू दे देता हूँ. उसके बाद तो एरिया क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फ्रेंड्स, यू कैन सी ए इंटू ए मीन्स साइड का स्क्वायर होता है. ठीक है, देखिए आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं. इफ़ यू ड्रॉ दिस इज अ डायगोनल, इफ दिस इज अ डायगोनल you can see here, friends, this side is A, also this side is A. You can see, friends, all the sides equal and this angle is 90 degree. If this angle is 90, in front of 90, if a triangle ABD, we assume ABD, this is the hypotenuse. Okay, so now by the help of right angle triangle you can also prove that area of the square is A square. Okay, 1 by 2 A into A or plus 1 by 2 A into A, this is also a right angle. Another, if both of the right angle triangle add them, we get the square area. Again this is A square. Okay, so if want to find the diagonal of a square equals to, friends, hypotenuse rule से you can find root under A square plus A square, you can give root 2 into A. ओके, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर, सिर्फ मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये था स्क्वायर का ओवरव्यू, ओनली सिंपल. अब मैं थोड़ा सा एक रेक्टेंगल की ओवरव्यू ले लेता हूँ. लेट्स, फ्रेंड्स, स्टार्ट रेक्टेंगल. ओके, दिस इज रेक्टेंगल. तो दिस रेक्टेंगल इज same like a square, but only difference is here all the sides are not equal. Okay, you can see this is 90, this is 90, this is 90.
also in the right square, but here this in front side is equal, whatever this also equal, but all the sides in the rectangle is not equal. It is the only difference in the square and rectangle. Okay, in front side equal, you can say this is length L, this is width B, this L is also in front equal L, this B is also this B. Okay, now you can write here perimeter of rectangle. What is friends, what is perimeter of any shape? This is sum of length of outer boundary. Okay, you can see AB plus BC plus CD plus DA. You can write AB plus BC plus CD plus DA. You can friends maybe not appear in the, okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 2 not 2 friends. First AB is equals to what friends? L, BC is equals to B and CD equals to L, and friends you can see here DA is equals to B. Now you can write same LL 2L, B plus B 2B. Okay, now you can take B common, L plus B. This is the perimeter of rectangle 2 into sum of length plus width का. Okay, so you can write here perimeter of rectangle. Now friends, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं शॉर्ट में रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लेंथ इंटू विड्थ. ओके, नाउ यू कैन राइट ऑल्सो हियर बाय द हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी. यू कैन ऑल्सो राइट हाफ ऑफ 1/2 b into L right angle triangle area, and this is also 1/2. If you add both, you get the same result, area of rectangle. Okay, now friends, this is the diagonal of here, diagonal BD, also another diagonal, this is also AC. Both the length is also equal. In a square also both the diagonal length of diagonal is equal. Here length of diagonal जो friends, length of diagonal equals to what friends? This is also hypotenuse we take. This is right angle triangle, right angle 90 opposite, this is hypotenuse. We can also write this to L square plus B square. तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हियर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल. अब मैं फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद जो लूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग, यू मे लर्न इन द 9th class also. This topic also you can learn, you have learned, but now I discussed more basic things here, and now can how to form that shape next, so that you can learn this and go ahead whatever you use in the surface area volume. So friends, take here. So friends, I take here cube. This is very interesting cube. Name is also very interesting. Now you can see I made one article like that cube, so that you can understand clearly. This is the cube friends. You can see here all the first characteristic of cube, all the sides, जितने भी साइड होगा फ्रेंड्स क्यूब में वो क्या होगा? इक्वल होगा, जितने भी साइड होगा. अब सबसे फर्स्ट है कि क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी. ओके, दिस इज ए 3 डायमेंशनल, बट स्क्वायर इज ए 2D. if any body lie in one plane, this is called 2-dimensional body. If any body or any object which does not lie in one plane, then this is called 3-dimensional body. So you can see here, if we keep here, this is a cube, if we keep this cube in this plane, if on this board, but you can see here this is height is not lie in this board. So you can say here what cube is a 3-dimensional structure or object. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो आप क्यूब देख लिए, क्यूब के जितने भी साइड है फ्रेंड्स, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ऑल आर इक्वल. यू कैन सी दिस, जितने भी हाइट होगा वो भी इक्वल होगा, सभी साइड जो होगा क्यूब का फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इक्वल. फर्स्ट अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करें फ्रेंड्स,
तो आप इस पर कीप कर दिए इस बोर्ड पे क्यूब को। तो जो भी क्यूब की जो प्लेन, क्यूब का जो भी प्लेन या फेस, इसको बोलते हैं फेस फ्रेंड्स। दिस इज फेस, दिस इज ऑल्सो फेस। यू कैन ऑल्सो से ही हियर इज प्लेन, वन प्लेन, दिस इज टू प्लेन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अपोजिट, बॉटम और फिर टॉप। तो नाउ फ्रेंड्स, तो टोटल फेस जो होता है फ्रेंड्स इन द क्यूब इज 6। यू कैन सी दिस इज 1, this mirror is also one mirror image, this is another one here, 2, 1 here, this is also either is this side 1, so 2 to 4, 1 top, another is bottom, total 6 faces in the cube. So friends, this is interesting here. Someone said to you, what is the lateral surface area of cube? Okay, so first you know those plane which is parallel to the board. Here I can see those plane which is parallel in the board. You can say this is plane, this is not come in the picture of the lateral surface. Okay, only those plane come in the picture in the calculation of lateral surface area, those which are perpendicular this board, those plane which are perpendicular to this board is called lateral surface area. तो फ्रेंड्स यहाँ यू कैन सी हियर दिस इज फर्स्ट फेस, दिस फेस इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। तो वन फेस इट्स मिरर इमेज एंटर दिस एंड दिस एंड दिस। टॉप इज नॉट कम इन द पिक्चर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया, lateral surface area. Okay, surface total surface area, this comes also whatever the total boundary surface area, you can add them all, you get the total surface area. But here we discuss first lateral surface area. In lateral surface area friends, सिंपल कहें हम तो जो भी आपका प्लेन इस बॉटम के और टॉप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो फेस जो होगा, वो प्लेन जो होगा, वो आएगा पिक्चर में लेटरल सरफेस एरिया के कैलकुलेशन में फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हुआ फ्रेंड्स इसका कि क्यूब में, क्यूब इज ए 3D मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D मीन्स 3 डायमेंशनल बॉडी या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, 3D ऑब्जेक्ट, यू कैन राइट हियर 3D ऑब्जेक्ट। क्यूब क्या है फ्रेंड्स? 3D ऑब्जेक्ट। ओके, अब 3D ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टोटल फेस कितना हो जाएगा? टोटल फेस इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड्स? टोटल फेस 1 2 3 4 5 6, टोटल फेस इज 6। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, हियर in the cube you can say this is edge. What is this? Edge. This is also edge, this is also edge, this is also edge. It is called edge. Okay, this is edge, this is also edge. So you can find how many edge? 1 2 3 4. Its mirror image also here 4 4 8. If you take this, you can consider already this only 1 and 2 also. So 2 to 4 2 to 4 4 4 8, total 8 plus 4 12. तो total age equals to friends 12. Total vertex, you can see this is vertex, this is also vertex, this is also, this is also. Now you can send 4 here and 4 also bottom mirror. You can write here total vertices equals to friends 8. Now we discuss here what is the total lateral surface area. You can see friends, all the face of this cube is a square. Why I am saying this is a square? Because all the sides of this face or of this plane is a square, all the equal side. This is A, this is also A, this is A, this is A also. So this is a square plane. By the joining of a square plane we can form the cube of cube. तो एक फेस ये हुआ फ्रेंड्स, टोटल फेस कितने? 6। तो टोटल कितने हो जाएगा? तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ कितने फेस आएगा फ्रेंड्स? जो इस बॉटम और टॉप के परपेंडिकुलर होगा प्लेन के,
तो इसके परपेंडिकुलर ये है फ्रेंड्स, एक इधर, 2 3 4, टोटल 4 फेस आएगा इन द पिक्चर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू फ्रेंड्स 4 इंटू 1 फेस of cube area. ओके, मीन्स व्हाट, टोटल फेस कितना आएगा 4 इसमें लेटरल सरफेस एरिया में फ्रेंड्स, तो 4 आएगा, बट अगर एक फेस की लेटरल एरिया अगर आ जाए उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा इस 4 फेस का। ठीक है, तो टोटल क्यूब का आ जाएगा, तो एक फेस का कितना होगा, एरिया ऑफ 1 फेस और 1 प्लेन कह सकते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइड का होल स्क्वायर फ्रेंड्स। तो नाउ यू कैन सी कि लेटरल सरफेस एरिया जो होगा फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन से 4 इंटू ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का क्या होगा फ्रेंड्स, 4a स्क्वायर। नाउ मैं यहीं पे सिंपली लिखता हूँ फिर फ्रेंड्स कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू फ्रेंड्स, टोटल फेस कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6, तो 6 और एक फेस का एरिया आपको पता चल गया फ्रेंड्स कितनी होती है, एक स्क्वायर की जो होता है ए स्क्वायर, यू कैन राइट ए स्क्वायर, यू कैन से ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ दिस इज सॉलिड then equal to 6a square, where a is side of cube, क्यूब की जो साइड होती है उसका लेंथ है फ्रेंड्स। ओके, ए क्या है, साइड जो क्यूब का होता है फ्रेंड्स, दिस इज क्यूब की साइड, ये इसकी लेंथ है, क्योंकि ऑल द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल। सो तो मैं क्यूब के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर एक पॉइंट और नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं लिखा दूँ कि लेंथ जो डायगोनल होगा फ्रेंड्स, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ। देखें, आप इस पॉइंट से करेंगे और इस पॉइंट में जाके जो निकलेगा, दोनों को ज्वाइन करने पे अपोजिट वर्टिस, आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो दिस, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो दिस, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो दिस। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इसको जब इनसाइड से आप इधर से और इस साइड से पेनिट्रेट करके जब ज्वाइन कर देंगे दोनों वर्टिस को अपोजिट का, तो वो होगा डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये पता चल जाए और ये साइड है, तो ये क्या होगा स्क्वायर, तो ये √2a होगा फ्रेंड, और ये भी 90 होगा, और जब इसको मिलाएंगे तो फिर ये a बनेगा और ये √2a बनेगा, और फिर ये क्या होगा, दिस इज 90, और फिर हाइपोटेनस रूल से आप निकालेंगे तो √2a का स्क्वायर रूट अंडर √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो √3a आएगा आपका लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब फ्रेंड्स। तो अब इसके नेक्स्ट में लेता हूँ क्यूबाइड। नाउ फ्रेंड्स, तो मैं क्यूब के बारे में ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे क्यूब से ही क्यूबाइड बना है, उसी को क्या क्या, उसी का क्या है, स्प्रेड है, मीन्स क्यूबाइड क्यूब से ही बना हुआ है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में जिस तरह का डिफरेंस है, सेम हियर। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, this is the shape of cuboid, this is cuboid not cube. Why we say, you can see all the edge here in a cuboid not equal, maybe 2 equal, but all the sides or edge here in the cuboid is not equal, so this name is cuboid.
इफ ऑल द इक्वल देन यू कैन से दिस इज क्यूब। तो क्यूबॉइड है तो फ्रेंड्स क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे फॉर्म हुआ, यू कैन सी हियर दिस इज लेंथ, इफ वी एज्यूम दिस इज लेंथ, दिस इज you can see friends, if we see this is width, this is length, or this is length, this is height, this is width, you can see this width, this length, this height. Okay friends, this height, this length, this width. Okay, now you can see here friends, length, height means it length of both sides are unequal. If unequal then this is a rectangle, it is the face of rectangle. This face is like a rectangle, this is also a rectangle. Why? This is b, this is height, so this is also a rectangle. तो जितने भी फेस होता है फ्रेंड्स क्यूबॉइड की वो रेक्टेंगल से बना हुआ था। सेम चीज़ यहाँ भी है, फेस जितना क्यूब में क्यूबॉइड में भी उतना ही होगा, एवरीथिंग। ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे जितने भी फेस होगा सभी रेक्टेंगल से मिलके ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो फेस यहाँ पे ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इट इज अ 3D फिगर और ऑब्जेक्ट यू कैन से ओके फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट्स क्या होता है, टोटल फेस। टोटल फेस फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे, 6, इसमें भी 1, इसके एक बॉटम 2, 3, 4, 5, 6, टोटल फेसेस 6 होगा फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, टोटल एज भी इसमें कितने होंगे, टोटल एजेज इक्वल्स टू फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे, 4, 4, 8 और फिर 4, 2 और 2, 4, टोटल 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। टोटल वर्टिस भी 8 हो जाएगा। तो हर एक चीज़ क्या हो रहा है, एक क्यूब की तरह ही हो रहा है, सिर्फ इसमें क्या हुआ कि इसका जो फेस है वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया का सेम डिफिनीशन हियर कि टॉप और बॉटम जो भी होगा उसके परपेंडिकुलर में जो भी फेस आपको दिख रहा है वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में पिक्चर में आएगा कैलकुलेशन में। तो दिस इज लेटरल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो। ओके, तो टोटल 4 फेस आएगा लेटरल सरफेस एरिया में। एवरी फेस का क्या होगा फ्रेंड्स, एरिया अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको लेंथ मानूंगा तो ये हाइट हो जाएगा और ये विड्थ होगा इधर। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना है, एल, बी और एच को, लेंथ, विड्थ और हाइट को आपको यहाँ पे कंसीडर में रखना होगा, जिससे कि आप केयरफुली से अच्छी तरीके से आप लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस कर सकते हैं। क्योंकि फेस का लेंथ और हाइट और विड्थ अलग अलग होगा तो एरिया भी रेक्टेंगल का अलग अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 टाइम्स लिखना एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल जो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ रेक्टेंगल इक्वल नहीं, वहाँ पे क्या था, सभी स्क्वायर था तो इसलिए, और सभी साइड इक्वल था स्क्वायर का, तो यू कैन राइट सिंपल, बट हियर नॉट इक्वल, बट यू कैन सी सम आर इक्वल। यू कैन सी दिस face is rectangle, this is also mirror of this face का। ओके, यू कैन सी दिस ऑल्सो, दिस इज मिरर। तो मैं 2 को लिख सकता हूँ मिरर में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2, तो एक फेस का कितना हो जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको L मानूँ तो ये क्या हो जाएगा H, तो इस रेक्टेंगल की क्या होगा एरिया L इंटू H। ओके फ्रेंड्स, प्लस इसका मैं लिखूँ तो B प्लस H, B इंटू एच हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया में लिख रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल का एरिया में अभी पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, B इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अगेन आएगा ये फ्रेंड्स, तो ये सेम आ रहा है, ये भी L होगा, ये हाइट होगा, तो प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ L इंटू एच प्लस फ्रेंड्स अगेन B इंटू एच आएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे L इंटू एच 2 बार आ चुका है, तो 2L इंटू एच हो गया प्लस 2B इंटू एच हो गया। यू कैन सी फ्रेंड्स 2 कॉमन ले लेते हैं या 2LH कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स, L प्लस B आपका ये आ जाएगा कॉमन और ये फिर बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2H इंटू L प्लस B। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसको आपने क्या माना है। अगर ये लेंथ हुआ तो ये हाइट और विड्थ माने, तब इस तरह का फॉर्मूला आप यूज करेंगे।
तो ये ध्यान रखेंगे कि किसको हम डिनोट कर रहे हैं, एच, एल और बी से। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं फ्रेंड्स ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 6 फेस हो जाएगा, 6 फेस का निकाल दें तो लेटरल सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा 4, एक टॉप का बचा और दूसरा बॉटम में बचा, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्ट में लिखता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप फेस प्लस बॉटम फेस। ठीक है, जिससे कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो अब देख सकते हैं लेटरल कितना आ चुका है, 2h, मैं इसी को लिखता हूँ 2LH प्लस 2BH प्लस, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स दिस L, तो दिस इज ऑल्सो L, ये L हो गया फ्रेंड्स, दिस इज B हो जाएगा क्योंकि ये B था तो ये भी पार्ट B होगा, 2 बार सेम आएगा, 2 इंटू L इंटू B आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 कॉमन आ जाएगा, 2LH प्लस BH प्लस LB, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी बता देता हूँ क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का। ठीक है, मैं डिस्कस नहीं किया था पहले, तो वॉल्यूम फर्स्ट में बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू फ्रेंड्स होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए बेस एरिया आप किसी को ले सकते हैं, ये मान लीजिए जाए कि क्यूब का ये बेस एरिया है, इसको हाइट ले लें, ये हाइट होगा, तो यहाँ पे तो बेस एरिया और हाइट तो यही होगा क्योंकि सभी साइड इक्वल है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज अ स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज अ स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर लिखूँ। हाइट क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज ए, ऑल्सो दिस इज ए, तो यू कैन राइट हियर दिस सिंपली ए क्यूब, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब होता है। ओके, तो क्यूब का आप फिगर भी बना सकते हैं, मैं दिस इज ए क्यूब, थोड़ा सिंपल इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स, फिगर थोड़ा हो सकता है कि नहीं सही बने। यू कैन सी दिस इज ए क्यूब। ओके, दिस इज ए क्यूब, ऑल द साइड्स आर ए, दिस इज ए, दिस इज ए, जितने भी साइड है फ्रेंड्स ए ही होगा। ठीक है, सभी। तो बेस एरिया अगर इसको मान लूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया, हाइट इसको मान लूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू फ्रेंड्स, मैं फिगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना दूँ, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि सभी साइड इक्वल आपका नहीं होगा। अगर इसको L मानते हैं, ये B हो गया और ये H हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो बेस एरिया ले लें आप, ये दिस इज बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या हो गया B इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइट कितना हो गया H, इसी का बेस एरिया इंटू हाइट, तो हम लिख सकते हैं LBH। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या हो गया फ्रेंड्स, LBH, और क्यूब का क्या हो गया, साइड का क्यूब। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बता चुका हूँ, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2H इंटू एल प्लस बी। तो ये सब अभी आपको इस वीडियो के बाद सभी जितने भी मैं इस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ फार्मूले को, सभी यूज होगा आपको एक्सरसाइज में। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें एंड नोट ऑल द हियर व्हाट यू आर डिस्कस्ड, देन यू कैन गो स्मूथली इन द एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी सर्कल के बारे में आपको डिस्कस कर दूँ हियर, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। जैसे ये सर्कल है फ्रेंड्स, यू कैन सी। ओके, आपको पता होगा बट मैं मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ दे दूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा फ्रेंड्स, 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, r इज द रेडियस, दिस इज
रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो 2 पाई r होता है फ्रेंड्स। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस क्या होता है टोटल, दिस इज सर्कमफ्रेंस हियर 2 पाई r। एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दिया हूँ कि आपको ये पता होगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, ये पाई स्क्वायर होता है, मैं इसे भी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब इसके आगे मैं लेता हूँ कोनिक सेक्शन का फार्मूला को। तो नाउ फ्रेंड्स वी टेक अनदर कोनिक सेक्शन, सॉलिड सिलेंडर। ओके, नेम इंडिकेट सॉलिड सिलेंडर। Cylinder means all the, you can see this is the solid cylinder. Why solid? This is not hollow, not a space here. Okay, this is solid. So यहाँ पे भी मुझे एक ही चीज फाइंड करना है कि इसकी सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का स्थान पे आ जाता है फ्रेंड्स, CS से कर्व सरफेस एरिया। ओके, और टोटल सरफेस एरिया, और अगेन इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के जितने भी होता है सभी रेडियस सेम होगा। फर्स्ट केस है, सिलेंडर में क्या होता है, जितने भी रेडियस होगा ये सभी क्या होगा, सेम होगा। सिलेंडर में कुछ हाइट होगा सिलेंडर, तो सिलेंडर हम बना कैसे सकते हैं, तो आप देखें सिंपल, आप बेंगल देखे होंगे, एक के ऊपर बेंगल को दूसरे बेंगल को रखें, अगेन उसके ऊपर बेंगल थर्ड रखें, 4 रखें, इट and so on go, we can form some height, then this is a cylinder also। तो सिलेंडर, अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर के बारे में बोल रहा हूँ, और कर्व सिर्फ सरफेस एरिया में क्यों यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कर्व का मतलब होता है कि ये कभी भी सीधा नहीं है, दिस इज लाइक दैट, दिस इज कर्व। ओके, सर्कल इज ऑल्सो कर्व, सो दिस इज वी से ही सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस नॉट पेरीमीटर, हियर वी से सर्कमफ्रेंस, बिकॉज दिस इज सर्कमिस, वहाँ पे भी कर्व आता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कर्व की बात आएगी, जैसे ये देखिए कर्व इसलिए बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप इसको टेंजेंट मारेंगे, टेंजेंट होता है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, इस पे यहाँ देखेंगे तो थीटा ये हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो थीटा थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, तो एवरी पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कर्व के बारे में सिर्फ सिंपल कहें कि एवरी पॉइंट टेंजेंट क्या होता है, वो चेंज करता है, टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए हम इसको कर्व बोलते हैं। बट अगर मान लिया जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ, आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑलवेज सेम आएगा। अगर ये 20 डिग्री होगा, ये भी 20, ये भी 20, इसलिए ये इसको कर्व नहीं बोलते, और कर्व तब बोलेंगे जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट एवरी पॉइंट पे आपका चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब सॉलिड सिलेंडर की बात आता है, इसलिए हम यहाँ पे इस फेस को बोलते हैं सिलेंडर का, ये जो फेस होता है, जब मैं इसको सिलेंडर ऐसे रख दूंगा तो ये वाला जो फेस वर्टिकल हुआ इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वाई वी कर्व, बिकॉज आई मेंशन हियर कि एवरी पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट मारूंगा तो इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप चेंज होगा। ठीक है, स्लोप जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं अभी यहाँ पे। तो ये सब नेम आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा जब 10 में, तब मैं आपको अच्छे से वहाँ पे हल्का सा इंडिकेट करूँगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कर्व सरफेस। जो भी फेस यहाँ पे जो भी कर्व इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इस सिलेंडर को रखने के बाद, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया अगर होगा, तो अगर सिलेंडर सॉलिड होगा मीन्स कंप्लीटली फिल्ड अप होगा, तो ये भी एक सर्कल है, वो इधर भी बॉटम में भी एक सर्कल बनेगा। तो अगर इस दोनों को भी ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस सिलेंडर का। ठीक है, और फिर अगेन वॉल्यूम क्या होता है ये डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, ये सिलेंडर का फिगर भी मैं बना देता हूँ आपके सामने। दिस इज ओके फ्रेंड्स, दिस इज हाइट फ्रेंड, सपोज हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज रेडियस। ओके फ्रेंड्स, दिस इज आर, स्मॉल आर, देखिए थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज स्मॉल आर। जो रेडियस यहाँ होगा एवरीवेयर रेडियस सेम रहेगा फ्रेंड्स। आप जहाँ पे भी निकालेंगे, ये पॉइंट हुआ, ये हाइट होगा एवरीवेयर सेम। जो ये हाइट यहाँ
ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है फ्रेंड्स, सी यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर एच। ओके, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, और टोटल सरफेस एरिया होगा जो फ्रेंड्स, इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स सी एस ए। ठीक है, बाद में मैं यूज करूंगा सी एस ए टोटल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी एस ए तो होगा ही, सी एस ए प्लस, अब देखिए एक टॉप में हो जाएगा एक बॉटम में सर्कल, 2 इंटू टॉप एरिया ऑफ सर्कल, डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा फ्रेंड्स हियर, क्योंकि ये तो क्या है, सर्कल ही तो बनेगा ऊपर में। ठीक है, यहाँ से भी फिगर से भी देख सकते हैं, दिस इज ए सर्कल। ओके, ये सर्कल एक है, रेडियस आर होगा इसका। ठीक है, रेडियस आर हो जाएगा। तो इस दोनों का अगर टॉप और बॉटम के सर्कल के एरिया को ऐड कर दूं सीएसए में, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, जितने भी आउटर में सरफेस है सबको ऐड कर दी, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2, क्योंकि 2 सर्कल बन रहा है, एक सर्कल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, पाई स्क्वायर, रेडियस आर हो तो ये हो गया फ्रेंड्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप फ्रेंड्स 2 पाई आर कॉमन ले लें तो h प्लस आर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर मैं एक सर्किल की एरिया फाइंड कर लूँ यहाँ से फ्रेंड्स, पाई स्क्वायर होता है, तो एच हाइट अगर मैं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया ऑफ द सिलेंडर का। नेक्स्ट मैं टेक करता हूँ फ्रेंड्स, ये ऑल अबाउट था आपका सॉलिड सिलेंडर के बारे में। अब अगर होलो सिलेंडर हो जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा, तो हियर टेक होलो सिलेंडर फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सी सेम लाइक हियर। ठीक है, जैसे आपने उसमें निकाला था, होलो जब रहेगा फ्रेंड्स तो होगा क्या कि आपका एक इनसाइड सरफेस हो जाएगा फ्रेंड्स, एक आउटर सरफेस हो जाएगा होलो का। अगर होलो होगा, जैसे आपको दिखा, तो अगर होलो सिलेंडर होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एक आउटर बाउंड्री होगा, एक इसका इनर सरफेस होगा, इनर सी एस, एक आउटर सी एस से निकलेगा और एक इनसाइड का सी एस से निकलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन जब होलो है तो फिर ये बॉटम ओपन रहेगा, बॉटम और टॉप दोनों, टॉप हो सकता है कि टॉप में फिलअप रहे, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लगा दिया जाए और फिर इसमें वाटर पोर कर दिया जाए तो भी ये होलो रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम इसमें वाटर या कुछ भी लिक्विड को रख सकते हैं या कुछ भी सॉलिड को रख सकते हैं। ठीक है, तो बट ये कि इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस इसका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनर रेडियस को स्मॉल आर मानता हूँ और आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो सी एस ए जो होगा फ्रेंड्स, सी एस ए ऑफ इनर सरफेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच हाइट होगा, दोनों के लिए तो सेम ही होगा, आर यहाँ पे दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इनसाइड अगर इनर सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस, तो आर रेडियस लेंगे स्मॉल का, क्योंकि स्मॉल ये कुछ थिकनेस होगा ना फ्रेंड्स, तो ये स्मॉल का आ जाएगा। और सी एस ए अगर चाहेंगे, सी एस ए अगर फाइंड करना चाहते हैं आउटर सरफेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, एच तो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें कि टोटल हमको ये ओपन है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों साइड क्या है, होलो है। ठीक है, तो अगर ये कुछ तो सरफेस आएगा तो इसका सरफेस कैसे निकालेंगे। अगर मैं आउटर एक सर्कल मान लूँ कि यहाँ पे रेडियस आउटर सर्कल का है, ये रेडियस हुआ, और इनर का यहाँ मान लूँ, अगर फर्स्ट आउटर में से सर्कल में से
इनर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाला स्ट्रिप जो फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स ये निकल जाएगा मेरा। ऐसा 2 स्ट्रिप बनेगा, एक टॉप में एक बॉटम में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, CSA ऑफ इनर प्लस आउटर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आउटर, प्लस ये जो स्ट्रिप फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स, इस स्ट्रिप का मैं नोटेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस स्ट्रिप एरिया। और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये 2 टाइम्स बनेगा। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बनेगा दिस, एक ऑल्सो दिस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CSA क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई कैपिटल RH प्लस फ्रेंड्स 2 इंटू पाई। अब यहाँ पे भी देखिए आउटर का एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं यहीं पे लिखता हूँ पाई कैपिटल का R² माइनस पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको हो सकता है कि थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई RH स्मॉल रेडियस 2 पाई कैपिटल RH प्लस यहाँ से भी 2 पाई आपका कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का होगा जब टॉप और बॉटम क्या होगा फ्रेंड्स, ओपन होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, नहीं भी आप इच्छा है यहाँ पे अगर है तो ले सकते हैं। 2 पाई H कॉमन आ जाएगा यहाँ पे तो R प्लस कैपिटल R आ जाएगा इसमें, प्लस 2 पाई होल में से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल का R², ये पूरे में आपका होगा, ठीक है। तो ये होगा टोटल CSA ऑफ होलो सिलेंडर की। अगर वॉल्यूम का बात करेगा तो फ्रेंड्स मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आउटर में से आउटर जो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम उसमें से क्या करेंगे इनर का वॉल्यूम को घटा दें, तो आउटर का क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R² H माइनस पाई स्मॉल R² H। यू कैन सी पाई H कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो R² माइनस स्मॉल का R² कैपिटल R² माइनस स्मॉल। तो ये जो भी मटेरियल लगा है इस होलो सिलेंडर को बनाने में उसका वॉल्यूम आपको निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका होलो सिलेंडर का ऑल अबाउट हुआ और सॉलिड सिलेंडर की बात। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वी कैन सी वीडियो ड्यूरेशन इज वेरी लॉन्ग, सो मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम होगा। बट मैं एक शॉर्ट इसका और वीडियो लूँगा जिसमें रेस्ट जो बचा कौन बचा है और अगेन सॉलिड सिलेंडर स्फीयर बचा है, होलो स्फीयर, ऑल मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, आप इसको देखें तब तक और इटसेल्फ अपना नोट बनाएं इसे देख के, जिससे कि अगेन आपको फिर इस वीडियो को देखना नहीं पड़े, ठीक है। मेरी ये सजेशन है आपसे। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।